हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार और आइए स्टार्ट करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप का क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप टू अवॉइड सेपरेशन विच अकर एट 3 मीटर ऑफ वाटर एब्सोल्यूट। The pump has a cylinder of diameter 10 centimeter and a stroke length of 20 centimeter. The pump draws water from a sump and delivers to the tank. The water level in the sump is 3.5 meter below the pump axis, and in the tank the water level is 13 meter above the pump axis. The diameter and length of the suction pipe are 4 centimeter and 5 meter, while of delivery pipe the diameter and length are 3 centimeter 20 meter respectively. Take atmospheric pressure head 10.3 मीटर ऑफ वाटर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या क्या दिया है द डेटा। हमें मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना है कि इस पंप का कितना मैक्सिमम स्पीड होगा। इट इज सिंगल एक्टिव रेसिप्रोकेटिंग पंप। हियर सेपरेशन हेड हैज गिवन 3 मीटर इन एब्सोल्यूट। द पंप हैज सिलेंडर ऑफ डायमीटर, तो सिलेंडर का डायमीटर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। स्ट्रोक लेंथ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया है। The pump draws from a sump and delivery to the tank. Here, the water level in the sump is 3.5 meter below the pump axis. It means this is the suction head. This is the suction head 3.5 meter, and in the tank the water level is 13 meter above the pump axis. So friends, अगर यह पंप है तो पंप एक्सिस से जो नीचे होगा वो सक्शन हेड हो जाएगा, और ऊपर जहाँ पर टैंक जो है डिलीवर कर रहा है, दिस इज द डिलीवरी हेड HD. This is the delivery head, this is the suction head from pump axis. Okay friends, अब क्या हो जाएगा, the diameter and length of the suction pipe का diameter दिया है 4 सेंटीमीटर and length दिया है 5 मीटर, and delivery pipe का जो डाया दिया है 3 सेंटीमीटर and length is 20 meter respectively. Take atmospheric pressure 10.3 meter of water. Here data has given single acting reciprocating pump, separation head 3 meter, cylinder diameter 10 centimeter, 0.1 meter, stroke length 0.2 meter, suction head 3.5 meter, delivery head 13 meter, and 13 meter, and here suction dia has given 0.04 meter, length has given 5 meter, delivery dia has given 0.03 meter, and length has given 20 meter. Atmospheric pressure head has given 10.3 meter. Now friends, we know that the suction side, the length and dia is given, so we will go for pressure head due to acceleration HAS, because we have to find the maximum speed. So HAS की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, जो HAS की वैल्यू होती है, it is the pressure head due to acceleration HAS equal to LS by G A by AS R omega square cos theta. So जो सक्शन साइड में सेपरेशन का जो चांस होता है वह एट द बिगिनिंग स्टार्ट ऑफ द सक्शन स्ट्रोक होता है या बिगनिंग में होता है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द सक्शन स्ट्रोक, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दिस इज द मिडिल, थीटा बराबर 90 डिग्री, एंड दिस इज द थीटा बराबर 180 डिग्री, दिस इज द एंड ऑफ द सक्शन स्ट्रोक। दिस इज द इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉन बिटवीन प्रेशर हेड एंड स्ट्रोक लेंथ। सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रोक लेंथ, दिस इज द एंड ऑफ द स्ट्रोक लेंथ, दिस इज द सक्शन स्टार्ट ऑफ द सक्शन, दिस इज एंड ऑफ द सक्शन। नाउ फ्रेंड्स, जो सेपरेशन चांसेस होगा यहाँ पर सक्शन साइड में स्टार्ट ऑफ द सक्शन पर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, दैट्स व्हाई द चांसेस ऑफ सेपरेशन इज एट दिस पॉइंट। सो दिस इज द सेपरेशन हेड एब्सोल्यूट फॉर्म 3.0 मीटर एब्सोल्यूट। ओके फ्रेंड्स, नाउ जो सेपरेशन अकर होगा, जो HAS की जो वैल्यू होती है, दिस इज द सक्शन हेड, this line, so atmospheric pressure line 10.3 meter HATM,
this is the HATM 10.3 meter, this is the suction head, and this is the pressure head due to acceleration, and this distance is the separation head 3 meter. So friends, H separation की वैल्यू क्या हो जाएगी? H separation की वैल्यू हो जाएगा, ये टोटल हम कह लें H separation plus HAS plus HS इक्वल टू HATM. इट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, HATM इक्वल टू H separation plus HAS plus HS, S separation plus HAS plus HS. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से S separation की वैल्यू क्या हो जाएगी? S separation इक्वल टू क्या हो जाएगा? HATM माइनस HAS माइनस HS. ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द separation वैल्यू, एंड फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, दिस इज द separation वैल्यू, H separation, this is HATM minus HS plus HAS. Okay friends, so we know that this value is equal to 3 meter, this value is equal to 10.3 meter HATM, and this suction head की जो वैल्यू है वो 3.5 मीटर है. suction head वैल्यू ऑलरेडी गिवन 3.5 मीटर, suction head 3.5 मीटर. सो यहाँ से हम HAS की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. सो HAS की वैल्यू आ जाएगा 3.8 मीटर. ओके फ्रेंड्स, 3.8 मीटर इट विल कम. दिस इज द प्रेशर हेड ड्यू टू एक्सेलरेशन. नाउ फ्रेंड्स, नाउ वी नो दैट कि जो सप्रेशन हेड ऑलरेडी हम जानते हैं कि LS/G A/S R ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा होता है. सो थीटा इक्वल टू 0 पर दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. सो HAS की वैल्यू 3.8 है, LS की वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर. सक्शन लेंथ की जो वैल्यू है फ्रेंड्स, सक्शन लेंथ की वैल्यू जो है वो 5 मीटर दिया है. डाया जो है वो 0.04 मीटर दिया है. दिस ऑल वैल्यू विल पुट इट हियर. तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस इज द LS की वैल्यू 5 मीटर, L/G 9.81 इंटू एरिया. दिस इज द एरिया ऑफ द piston or cylinder. This is the area of pipe. This is the area of pipe. So we know that friends कि जो area of dia of the cylinder है 0.1 है, here dia of the pipe जो 0.04 है. so यहाँ से area कैलकुलेट हो जाएगा. R is the stroke length by 2. R is the stroke length by 2, and stroke length has given 0.2 meter. So it is divided by 2. So this is the R value and this is the omega square. So friends, हमें यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी. R वैल्यू दिया हुआ है. सो जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी, ओमेगा की वैल्यू जो है, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड 3.456 रेडियन पर सेकेंड इट विल कम. जब हम इससे स्पीड फाइंड करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी कितना, n की वैल्यू हो जाएगी 60 इंटू ओमेगा बाई 2 पाई. सो 60 इंटू 3.456 डिवाइड बाई 2 पाई. सो फ्रेंड्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम स्पीड एट सक्शन साइड कितना हो जाएगा, NS. दिस S इज द सक्शन. सो NS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33.0038 RPM आ जाएगा. ओके फ्रेंड्स, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड एट सक्शन साइड. नाउ इफ यू टॉक अबाउट डिलीवरी साइड, friends, if you talk about delivery side, same procedure we will follow. So we know that friends कि pressure head due to acceleration in delivery side क्या होता है, LD/G A/AD R ओमेगा स्क्वायर cos थीटा. सो cos थीटा इक्वल टू 0 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू अचीव होगी. सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, HAD हो जाएगा LD/G A/AD R ओमेगा स्क्वायर. सो फ्रेंड्स, LD की वैल्यू दिया हुआ है. LD की वैल्यू जो है, लेंथ ऑफ द डिलीवरी पाइप LD की वैल्यू 20 मीटर दिया हुआ है. डाया जो है 0.03 दिया हुआ है. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द पिस्टन, दिस इज द एरिया ऑफ द पिस्टन सिलेंडर, दिस इज द एरिया ऑफ द पाइप. सो वैल्यू हैज गिवन, ये वैल्यू हमें मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगा. R की वैल्यू जो हम जानते हैं फ्रेंड्स, स्ट्रोक लेंथ बाई 2, इट इज ऑल्सो गिवन 0.2 डिवाइड बाई 2. सो R वैल्यू ऑल्सो वी आर नोइंग. So we have to find this one. This is the angular speed
सो फ्रॉम यहाँ से जो हमें एन की वैल्यू जो है मैक्सिमम स्पीड हमें फाइंड करना है। सो वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट दिस वन HAD। वी नो दैट फ्रेंड्स कि जो सेपरेशन अकर एट द एंड ऑफ द डिलीवरी साइड, यहाँ पर जो है दिस इज द इंडिकेटर डायग्राम, प्रेशर हेड ड्रॉन बिटवीन प्रेशर हेड एंड स्ट्रोक लेंथ, दिस इज द फॉर सक्शन साइड। डिलीवरी साइड क्या हो जाएगा फ्रेंड, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द डिलीवरी, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द डिलीवरी, दिस इज द एंड ऑफ द डिलीवरी। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द डिलीवरी। सो स्टार्ट ऑफ द डिलीवरी केस में क्या होगा, HAD प्लस SD प्लस HAD हो जाएगा, दिस इज द प्रेशर ड्यू टू एक्सेलरेशन, एंड इट विल एट द एंड ऑफ द डिलीवरी क्या हो जाएगा, इट विल कम इन द नेगेटिव। सो जो चांसेज ऑफ सेपरेशन होता है इन डिलीवरी स्ट्रोक में एट द एंड ऑफ द डिलीवरी होता है। सो एट दिस पॉइंट पे क्या होगा फ्रेंड्स, डिलीवरी होगा। सो जो डिलीवरी प्रेशर है, सॉरी जो सेपरेशन प्रेशर है, एच सेपरेशन इस वैल्यू हैज गिवन, एच सेपरेशन की वैल्यू 3 मीटर दिया हुआ है। तो जब तक यह प्रेशर यहाँ पर 3 मीटर के पास नहीं आएगा तब तक हमारा सेपरेशन नहीं होगा। सो जब सेपरेशन हो रहा है इट मीन्स दैट प्रेशर इज अप टू दिस पॉइंट। सो सेपरेशन प्रेशर कितना हो जाएगा, 3 मीटर एब्सोलूट। सो फ्रेंड्स इस केस में क्या हो जाएगा, दिस प्रेशर में हम देखें, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर HATM, दिस इज द डिलीवरी हेड माइनस दिस इज द एक्सेलरेशन हेड। सो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, H सेपरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, H सेपरेशन इक्वल टू HATM दिस डिस्टेंस प्लस HD minus this one HAD. So it will give the this distance plus this distance minus this distance. So we will get this S separation value. So friends यहाँ से क्या हो जाएगा, S separation is equal to HATM plus HD minus HAD. We know that friends HATM की वैल्यू 10.3 मीटर, HAD की वैल्यू जो है, सॉरी SD की वैल्यू जो है, डिलीवरी हेड की जो वैल्यू है 30 मीटर दिया हुआ है, एंड S सेपरेशन की वैल्यू 3 मीटर है। सो यहाँ से जो हमें HAD की वैल्यू जो है प्रेशर हेड ड्यू टू एक्सेलरेशन इन डिलीवरी साइड 20.3 मीटर आ जाएगा। इस वैल्यू को हम फ्रेंड्स यहाँ पुट कर देंगे तो हमें ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, और वहाँ से फ्रेंड्स हम फाइंड कर लेंगे मैक्सिमम स्पीड इन डिलीवरी स्ट्रोक में क्या होगा। तो फ्रेंड्स HAD की वैल्यू जो है पुट कर देंगे यहाँ पर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू आएगा 2.994 रेडियन पर सेकेंड आएगा। सो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे n की वैल्यू 60 × ओमेगा/2 तो फ्रेंड्स यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगा क्या, 28.59 RPM। सो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड इन डिलीवरी स्ट्रोक। ओके फ्रेंड्स, तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पंप क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पंप जो मिनिमम होगा, अगर मिनिमम नहीं रहेगा, सपोज मान लेते हैं फ्रेंड्स कि मैक्सिमम स्पीड जो है, हम मैक्सिमम स्पीड अगर हम 33 लेंगे, मान लेते हैं कि हम 33 लेते हैं, तो क्या होगा फ्रेंड्स, इस केस में यह स्पीड इस स्पीड से ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, कैविटेशन या सेपरेशन हो जाएगा। सो क्या होगा, हम मिनिमम स्पीड लेते हैं बिकॉज इट विल बी सेफ, इट इज़ अंडर दिस स्पीड। सो क्या होगा, हमारा सिस्टम विदाउट सेपरेशन रन करेगा। सो क्या होगा फ्रेंड्स, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पंप क्या हो जाएगा, पंप के केस में क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ द सक्शन स्पीड और डिलीवरी स्पीड, दोनों में से जो मिनिमम होगा उसी को हम पंप का मैक्सिमम स्पीड लेंगे। सो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्पीड विदाउट सेपरेशन क्या हो जाएगा, पंप का 28.59 RPM। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पंप। सो फ्रेंड्स मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।